Hello, everyone. Welcome to my show, Real Stories, Real Business. I hope everyone is doing great. एक मेंटर जैसे कि आप सब जानते हैं एक मेंटर और कोच का होना बहुत ज़रूरी है because their experiences and their knowledge guide us to the right direction. और आज के टाइम में मेंटर का होना एक बेनिफिट नहीं है बट इज अ नेसेसिटी दीज डेज बिकॉज इट रियली हेल्प अस टू be successful in our journey. So, well, my name is Ranjana Arora. I'm originally from New Delhi, India, and I currently live in Calgary, Alberta with my family. Um, I'm a I'm a full-time employee, and I am currently working as a finance professional. और मुझे कम से कम 17 years of experience है working as a corporate finance professional, and I'm also running my digital marketing business as a side hustle. Me and my guests, we both help individuals in setting up their digital marketing business from the comfort of their home. So today I'm very, very excited to welcome my guest. She's my coach, my business partner. I love her confidence, honestly. And she has achieved a great success in her business. So let's welcome Shikha Chawla. Hi, Hello. Shikha. Hi, How are Angela. you? I'm good. Hello, everyone. So, thank you, first of all. Thank you so much for inviting me on your page. No, Shika, thank you so much. I know you're not feeling well today, but still, you made it today. And thank you so much for having here. And I'm really, really excited to look forward for the valuable discussion for our audience. Same here. So, सबसे पहले, I know a lot of people know you really well, but जो नहीं जानते, I just want you to give a quick introduction about yourself. For sure. Hello, everyone. My name is Shikha. I'm also originally from New Delhi, India. And I live in Ontario, Canada. And by profession, I'm an accountant and a graphic designer. And but I'm also doing this business. Not also, I'm also actually doing only this business from past 4 years. And I am living here with my family. I have 2 kids, and yeah, and that's it about myself. Okay. Definitely, Shika, आज तो बहुत बड़ी लिस्ट है आपके लिए questions की. So here we go with the second question. What was the motivation behind joining this business? What inspires you for joining this business? So, first of all, like myself, because I know there are so many people Mhm, here, even though उसमें से मैं भी एक मेरा भी एक ये reason है कि why mhm, why I was looking for something कि मुझे कुछ ऐसा घर से मिल जाए, तो definitely I have a small kids, तो मुझे उनके लिए ये business चाहिए था, but mhm, जो सबसे बड़ा रीजन था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का वो मैं खुद थी। ठीक है, बिकॉज जब हम एज एन इमिग्रेंट किसी भी mhm, कंट्री में जाते हैं अपनी कंट्री को छोड़ के, तो एक हमारे अंदर एक ड्रीम होता है जो हमें बचपन से हमने देखा होता है। वो देखो वो एरोप्लेन mhm, जा रहा है, हम भी किसी दिन जाएंगे उस एरोप्लेन में। हम भी मूवीज में देखा होता है कनाडा यूएसए, हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे। mhm, तो एक इमेज बड़ी एक ऐसे होता है कि बहुत वो होता है ना, फेरी टेल में हम सुनते हैं स्टोरीज, वैसा mhm, लगता है कि वहां जाएंगे ऐसी लाइफ होगी वैसी लाइफ होगी, ओहो आहा। और जब वो मौका आता है और हम जाते हैं, बट एक्चुअल में जब mhm, वो हकीकत होती है ना, वो डिफरेंट होती mhm. है। ठीक है, बट बिल्कुल, बिल्कुल. मैंने फिर भी मैं सीरियसली बताऊंगी, मैंने इतनी स्ट्रगल यहाँ के नहीं फेस करी। एक्चुअली मैं कहूंगी मैंने बिल्कुल भी स्ट्रगल फेस नहीं करी है, क्योंकि माय Mhm, हस्बैंड वाज लाइक ही हैज अ गुड जॉब, एंड मुझे कभी लाइक ही डिडंट टोल्ड मी कि mhm, नहीं जाओ जॉब कर बाहर जाके, तो मुझे ऐसी कभी जरूरत पड़ी नहीं। बट मुझे एक ऐसा mhm, शौक था कि नहीं यार कुछ तो करते हैं, देखो सही बाहर की लाइफ कैसी होती है। सो मैंने mhm, अपनी स्टडी स्टार्ट करी कि यहाँ पे करना, एंड आफ्टर दैट मेरा बड़ा mhm, मैंने अपने डे केयर में डाला, एंड किसी तरीके से लाइक वो जो टाइम पीरियड था mhm, ना, वो हो गया कि चलो निकल गया वो टाइम है। बट एक्चुअली mhm, जब मेरा छोटा बेटा हुआ, उसके बाद मुझे था कि अब इतनी mhm, स्टडी कर लिया, सब कुछ कर लिया है, इतनी इतनी सारी डिग्रियां ले ली हैं, अब क्या करूं? अब जॉब तो करनी चाहिए ना। तो फिर मैंने mhm, मैंने किया जॉब का, एंड आई गॉट द जॉब, एंड बट उसके लिए मुझे mhm. अपने बेटे को डे केयर में डालना पड़ा, Okay. जिसकी वजह से मुझे नहीं अंदाजा था कि उसको इतने हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे कि जब वो हुआ, एंड दैट टाइम ही वाज लाइक परफेक्टली फाइन, लाइक उसकी हियरिंग वगैरह सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। बट Mhm, जैसे हम उसको जैसे डे केयर वगैरह में डाला, mhm, एंड उसको mhm,
हेल्थ इश्यूज आने लगे, तो जिसकी वजह से देन आई डिसाइडेड कि फाइनली जब उसकी सर्जरी वगैरह हुई, तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब और नहीं, ठीक है, हो गया जितना होना है। अब मेरे लिए जो प्रायोरिटी है ना, वो माय किड्स, एज अ मदर रोल वो सामने आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उस टाइम के लिए मैंने कहा नो, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग, एंड आई एम गोना टेक केयर ऑफ माय किड्स, एंड आई एम गोना स्टे होम। देन माय हस्बैंड, okay, yeah, it's okay, and he will take care of, like, outside, like the financial part, everything. But कहीं ना कहीं वो ना क्योंकि देखो 24/7 बच्चों को मदर नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता, राइट? चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उनका एक अपना, देखो अगर छोटे हैं तो उनकी एक अपना नैप टाइम है, उनका अपना खाने का टाइम है, टीवी वॉच करने का टाइम है, एवरीथिंग। बट आफ्टर दैट व्हाट, लाइक वो स्कूल चले जाएंगे तो व्हाट, राइट? और एक बार आपके करियर में वो जो एक लंबा गैप आ जाता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है दोबारा से स्टार्ट करना। तो मेरे साथ बिल्कुल वही हो रहा था, लाइक कुछ टाइम के लिए मुझे बहुत बहुत एंजॉय किया मैंने उस टाइम को, एंड देन आफ्टर दैट बस मुझे ये था, नहीं यार, लाइक कुछ तो करना है, कुछ तो एक सुबह उठो तो कोई एक पर्पस होना चाहिए कि आज मैंने उठा है, आज मेरा ये गोल है, मुझे आज ये पूरा करना है ना। तो वो लाइफ में ऐसा रह नहीं गया था, बस ऐसा लगा था कि बस एक मदर ड्यूटी में फुलफिल कर रही हूँ, मैं एज अ सारा कुछ कर रही हूँ, बट व्हाट अबाउट मी, मतलब मेरी लाइफ का क्या है, क्या चाहिए मुझे लाइफ से, राइट? तो चीजें मुझे अंदर ही अंदर मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से आई वाज लाइक, मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। फिर घर में भी लाइक और नॉट हैप्पी, डेफिनेटली मैं सामने वाले को, मतलब फैमिली को कैसे हैप्पी रख सकती हूँ। देन आई डिसाइडेड टू गो समथिंग कि मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए जो कि मैं घर पे बैठ के और अपनी मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करूं। एंड आई वाज, मेरे माइंड में कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, तो मतलब बिजनेस का भी नहीं कि मुझे करना है। आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जॉब ऑनलाइन कुछ, और मुझे मिली भी और मैंने करी, बट उसके अंदर भी एक पॉलिसीज होती हैं कि आप जब कर रहे हो रूम में कोई नहीं आएगा, एक टाइम सेट ऑफ आपका होता है, जो उसमें भी लगा नहीं कि मैं बाउंड हो गई हूँ, ठीक है। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं, ये भी मेरे लिए नहीं है। एंड या बैठे बैठे वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को बहुत से ढूंढ रहे हो ना, तो फिर वो तो किसी ना किसी तरीके रूप में आपके सामने आ ही जाती है। तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ, एग्जैक्टली वही। आई वाज लुकिंग फॉर, मतलब ईगरली लुक कर रही थी, कुछ मुझे ऐसा मिल जाए जिसको मैं ना, लाइक जिससे मेरे को प्यार हो। मेरे ख्याल से मेरे मतलब मैंने ना शायद हमारे ना जीन्स में ऐसा है, लाइक मेरी फैमिली में भी ना कोई जॉब करना पसंद नहीं करता। और मैंने भी शादी से पहले अपने हस्बैंड को कह दिया था कि मैं ना जॉब नहीं करूंगी, कुछ मुझे तुम मेरे को ना, मेरी मम्मी को तुमने शादी करते वक्त ये बोला था कि मैं ना आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, तो खुश रखो, जो चाहूँ वो मुझे ला कर दो। तो लाइक एंड ही नेवर टोल्ड मी कि तू जा और जॉब कर। सो मुझे खुद को ही था कि मैं वैसा करूं कुछ जिसके लिए कि मुझे जिसके लिए बाहर ना जाना पड़े, है ना, और मैं कंफर्ट में रहकर वो चीज मिल जाए। तो दीज आर द थिंग्स, इतना था कि मेरे ही अपने ही अंदर से मुझे था कि मुझे कुछ मिल जाए ऐसा जो मेरी हेल्थ पे जो मेरा इफेक्ट पड़ रहा था। तो उसी ने मुझे इतना पुश किया कि नहीं, यू हैव टू डू इट, कुछ ना कुछ तो तुम्हें चाहिए। एंड आज उस चीज को 4 साल हो गए, मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, ओह गुडनेस। बिल्कुल नहीं, ये डेफिनेटली शिखा, ये वैसे भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप को इंगेज रखना। एक वो कहते हैं ना, एक वुमन के बहुत सारे रोल्स हैं लाइफ में, बीइंग अ मदर, वाइफ, राइट? बट ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक सम टाइम ऑफ फॉर योरसेल्फ आल्सो, कि भाई वी आर गेटिंग एंगेज इन मीनिंगफुल थिंग्स, राइट? अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी है, राइट? एंड यू अंडरस्टैंड एट अ सर्टेन टाइम बच्चों को जरूरत होती है, यू हैव टू गिव फुल टाइम टू देम, मगर कुछ टाइम के बाद ऑफ कोर्स दे गेट एंगेज, दे हैव टू गो बैक टू द स्कूल्स। What exactly you will be doing at that time? Definitely. Sacrifice करना अच्छी बात है कि चलो ठीक है, मदर्स का नाम ही एक सेक्रीफाइस करना है, बट एट द सेम टाइम you should also focus on yourself also, जो बहुत जरूरी है for your mental health. और रंजना, मैंने ना इन 4 सालों में ना ये बहुत अच्छे से रियलाइज करा है कि मदर, वाइफ,
डॉटर, ग्रैंड मदर, मतलब ग्रैंड डॉटर, ये सब चीजों में सबसे बड़ा रोल एक खुद का, एक एज अ फीमेल, एज अ वुमेन, अगर आप खुश नहीं हो ना, इस रोल को खुश नहीं रख सकते ना, बिल्कुल तो आपका जो बिल्कुल अदर रोल्स है, जो आपकी मदर, ये सारे रोल्स है, आप उनमें से किसी एक को भी खुश नहीं रख सकते हो। बिल्कुल और अगर बिल्कुल आप आप सही कह रहे खुश हो ना, तो आप इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपको ये नहीं लगेगा ये हैं। मेरे सारे रिश्ते बोझ है, बोझ कुछ नहीं लगेगा, आप बहुत खुशी खुशी वो करोगे। ये मैंने इन 4 सालों में एब्सोल्युटली बहुत अच्छे से लर्न किया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। आई टोटली अग्री विद यू बिकॉज द मोमेंट आप जैसे मैं भी जॉब पे जाती हूँ, वी टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, वी गेट एंगेज्ड, द मोमेंट वी कम बैक एक अलग से खुशी होती है दैट कुछ आज अचीव किया, एंड देन यू आर गिविंग टाइम टू योर किड्स, योर फैमिली, यू आर हैप्पी, हाँ, नॉट समथिंग आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो, राइट? तो डेफिनेटली। बहुत जरूरी है कि बैलेंस करना हर चीजों को, विच इज जो रियली वो रियली चीज इम्पोर्टेंट। नहीं करती है, मैंने देखा है हाँ। वो हमारे पास ना, हम एक मदर है, हमारे बच्चे छोटे हैं, अच्छा हम जॉब करते हैं, अच्छा, बट वही अगेन वो सेक्रीफाइस वाली बात जैसे अभी आपने कही, और लेडीज का तो मतलब वुमेन का तो नाम एक सेक्रीफाइस वो है कि इसको तो करना ही बिल्कुल करना है। तो वो सबसे बिल्कुल पहले जो सेक्रीफाइस करते हैं ना, वो अपना एक अंदर जो, मुझे वर्ड नहीं समझ में आ रहा क्या मैं बोलूं, कि जो एक वुमेन का वो रोल होता है ना, वो ही सबसे पहले सेक्रीफाइस होता है, और जिसकी बिल्कुल वजह से वो अदर रोल्स में अपना 100% नहीं दे पाती है। दे पाते, एग्जैक्टली। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थर्ड क्वेश्चन। तो शिखा, आपकी क्या पर्सनालिटी थी जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और आज आपको क्या लगता है कि व्हाट ड्रास्टिक चेंज यू हैव brought in your life by joining this business? इस चेंज पे तो मैं आपको पूरा एस्से लिख के दे सकती हूँ बिकॉज आई वाज टोटली चेंज। मतलब मेरे घर वालों से लेके इस बिजनेस में, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, एक एक, मतलब जिनको पता है कि मैं पहले कैसे थी, दे कैन इवन दो टेल यू कि व्हाट चेंज, लाइक मेरे अंदर कितने चेंजेस आए हैं। द पर्सनालिटी जो मेरी थी, इट वाज लाइक टिपिकल इंडियन, मतलब इट्स लाइक ऐसे की टिपिकल, हाँ, हाउसवाइफ जैसी, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्वियसली गुस्सा, पता है, चिड़, कोई कुछ कह दे तो उसकी बात को कितनी जल्दी हर्ट होना, और समटाइम्स हो गए, कोई ऐसा बात करने के लिए मिल जाए तो चल एक दो, होता है ना वो वाली कि ठीक है यार, दो बातें उसके बारे में बोल दी, दो, तो एक वो पर्सनैलिटी थी कि ठीक है यार ना, एक है लेडी जो कि जिसके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ ठीक है बाकी घर और ये सब कुछ, सो एक वैसी मेरी वो बनती जा रही थी पर्सनालिटी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि मैं चाहती थी जॉब करना यहाँ पर आकर, जब मैंने स्टडी वगैरह नहीं कर पाई, और मैं उसमें भी खुश थी, बट जब मेरी मतलब पर्सनैलिटी वैसे बनती जा रही थी, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, ठीक है, शायद किसी और चीज पे नाराजगी थी जो मुझे भी नहीं पता होता था, बट मैं कहीं और जाके निकालती थी, बच्चों के ऊपर निकाल दिया, बट इस बिजनेस में आने के बाद जब मुझे ये पता चला ना, कि जब मुझे मिला कि आज मैं सुबह उठ रही हूँ और मेरा ये गोल है जो मुझे पूरा करना है, और बिलीव मी, जब ये मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था ना रंजना, मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, या मैं जिसमें कदम रख रही हूँ क्या मैं सक्सेस होंगी या नहीं होंगी। बस मुझे एक बात की खुशी थी, मुझे मेरे हस्बैंड ने ये बिजनेस स्टार्ट करवा दिया है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, अब मुझे ये बिजनेस करना है, अब देखो कि क्या होगा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, कुछ प्लान नहीं किया था, बस जंप कर ओके। रहे, एक कुछ भी नहीं आता था। और उसके बाद जैसे 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 मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ती गई, डेफिनेटली चैलेंजेस आए, बहुत चैलेंजेस आए, बहुत बदला अपने आप को, और बहुत अच्छे के लिए बदला, जिससे कि मैंने देखा कि मेरे साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे बच्चों में वो चेंजेस आए, ठीक है, और एक आपकी जो रिस्पेक्ट बनती है, ठीक है, एक जब मैं एज अ सिर्फ कुछ नहीं कर रही थी, मैं ये नहीं कह रही बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते थे, छोटे थे तो डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट करते थे, बट या एक कई चीजों में ऐसा होता है, दे सेड ओके, यू डोंट नो एनीथिंग, ठीक है, और मेरे पापा को ज्यादा पता है, ठीक है, ओके, जब और लेडीज वुमेन जैसे देखते थे कि हाँ औरों की मम्मा जॉब पे जाती है, तो दे टोल्ड मी ओके मम्मा आप तो कुछ करते ही नहीं हो,
ठीक है, जबकि ऑब्वियसली घर का काम किसी को नजर नहीं आता कि जैसे मैं करती हूँ, लेकिन Yeah. तो वो चीजें बहुत हर्ट करती थी। बट नाउ व्हेन आई जब वो मुझे बोलते हो, इवन तो माय हस्बैंड समटाइम्स ही टोल्ड मी लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू, शायद जो तेरे अंदर चेंजेस आए हैं ना, उसकी कुछ क्वालिटी मेरे अंदर आ जाए ना, तो मैं तो धन्यवाद, मुझे इतना अच्छा लगता है कि तो जो मेरे अंदर आए, दैट आई एम मोर लाइक जो मेरी पर्सनल कुछ ऐसे जो टैलेंट्स मेरे अंदर थे, शायद मुझे भी पता ना चलते अगर मैं ये बिजनेस करती। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास मैं एक बिजनेस रन कर सकती हूँ, मैं लोगों से बात कर सकती हूँ। मुझे तो लोगों से बात करने पे भी बहुत डर लगता था। इवन दो जब मैं बच्चों के स्कूल में भी जाती थी, तो मैं अपने हस्बैंड को लेके जाती थी कि शायद ना, पता नहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूं, पता नहीं मेरी इंग्लिश ठीक है नहीं होगी, ठीक है, कुछ गलत ना निकल जाए। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स में मुझे ऑलवेज मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। Okay. आप मानोगे मैंने 8 साल गाड़ी सीखी, 8 साल Okay. गाड़ी नहीं आती थी, मुझे डर लगता था। और इस बिजनेस में आने का मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया। आई हैव द लाइसेंस नाउ, लाइक मैंने एक पहली बारी में ही अपने सारे टेस्ट पास करे, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि टुडे की आई डिड समथिंग, आई अचीव सम I achieved so many things in this business, not for my family only, for myself. So it's the biggest. बोलो। क्योंकि जैसे शिखा लोग अक्सर जब ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है इज अ सोशल मीडिया का बिजनेस है, कि चाहे वो भले बहुत अच्छी बात कर ले, डिलीवर कर दें, अपनी एक्सप्रेस कर दें अपने इमोशंस, बट जब सोशल मीडिया की बात आती है तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं कि घबरा जाते हैं डेफिनेटली। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू बी लाइव, और वो कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही लो हो जाता है, राइट? क्योंकि मेजर जो चैलेंज ये आता है, तो हाँ, आपको नहीं कभी लगा कि जैसे मैं ज्वाइन कर रही हूँ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मतलब क्या फीलिंग्स थी, क्या थॉट प्रोसेस था? मेरे को जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब मैं इस बिजनेस में मतलब मैं जब घुसी इस बिजनेस में आई, नहीं पता था कि मुझे लाइव भी करना है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने जब नवंबर या अक्टूबर एंड में जब जैसे मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने जनवरी में जब मेरा फर्स्ट लाइव था ना, मुझे तब जाके पता चला कि लाइव जैसी कोई चीज भी होती है। तो आई वाज सो नर्वस, बट दैट टाइम आई डिड फर्स्ट लाइव विद माय कोच, एंड मैं उससे बोली मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, मेरी से कुछ गलत हो गया है ना, और मैं घबराहट में कुछ मेरी से इंग्लिश में कुछ गलत निकल गया। तो शी टोल्ड मी, हु टोल्ड तो इंग्लिश में करो, व्हाई डोंट यू डू इट इन योर ओन लैंग्वेज? मैंने कहा रियली? कहती यस। मैंने कहा मैं कर सकती हूँ, मेरे से 3-4 बार मैंने कर सकती हूँ, कहती हाँ क्यों नहीं। और मेरा वो नर्वस में तब भी थी, बट एक कॉन्फिडेंस आ गया था, अच्छा अपनी लैंग्वेज में करना है तो आई एम। तो अगेन जब मैं इस बिजनेस में आई, मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है अपने लिए, बस इतना मुझे जानती थी मैं। मुझे कुछ नहीं पता था मुझे सोशल मीडिया पे क्या करना है। इवन दो मेरे को सोशल मीडिया पे ये भी नहीं पता था कि टैग क्या होता है, मेरे को ये भी नहीं पता था कि व्हाट्सएप क्या चीज है। वो तो मैं जब इंडिया गए तो मुझे मेरी कजिन्स ने बताया कि व्हाट्सएप करके एक ऐप आता है जिसमें आप इंटरनेशनल कॉलिंग कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा, ओके। सो मतलब लाइक आई वाज लाइक, you know what, that is the beauty of this business, के सब लोग स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, राइट? क्योंकि कुछ नहीं भी आता, बिकॉज वी हैव ग्रेट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स इन प्लेस जो स्टेप बाय स्टेप हमें ट्रेनिंग मिलती है, एंड वी लर्न एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, राइट? एंड यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल, शिखा, और आई हैव सीन अदर पीपल ऑल्सो, they have done amazing in this business, जिनको कभी भी they were never on the social media platforms, they don't know anything, but they're doing wonders in this business. और I think बड़ा जरूरी है step by step रोज किसी चीज को सीखें और समझें, and then only you can able to achieve something, के confidence level build up होता है, right? डेफिनेटली, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी होती है, वो जो एक विल पावर होती है ना, अगर आपको कुछ एक विल पावर है कि मुझे सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी चैलेंजेस आए, तो मुझे नहीं लगता कि एज मैटर्स और लैंग्वेज मैटर्स, नथिंग। बिल्कुल बिल्कुल।
And of course, और सबसे अच्छी बात ये है कि we can do the businesses any language what you want. डेफिनेटली ये तो मेरे लिए Definitely. एक वरदान था कि यू रियली अगर ये बिजनेस Yeah. अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं तो फिर तो लाइक मेरा आधे से ज्यादा जो कॉन्फिडेंस मतलब था ना कि नहीं है मेरे पास, वो तो मेरा उस ये सुनकर ही वापस आ गया कि हाँ ये बिजनेस हम अपने Yeah. लैंग्वेज में कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होना है। तो बिल्कुल yeah, बिल्कुल it's a- exactly. Okay. So शिखा, तो आपको क्या लगा कि what have you achieved in this business so far? मतलब what आपकी like achievements क्या रही हैं इस business achievements में? in the some terms of financially or like personally? Both, everything, like qualitative, quantitative, मतलब what exactly you want to give the message to the audience के इस journey में आपको क्या फायदा मिला, how you have shaped yourself as an individual. So as an individual, like I mentioned that मुझे अपनी खुद की पहचान मिली इस बिजनेस में आके। लोग मुझे जानने लगे, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा होता था कि कोई रिलेटिव नहीं है या कोई फ्रेंड्स नहीं है, इज दैट काइंड ऑफ पर्सन थी कि इतनी जल्दी किसी को फ्रेंड्स नहीं बनाना या फिर तो मुझे फ्रेंड्स लाइक मुझे एक वो मिला कि हाँ मेरा जो टैलेंट्स थे वो निकल के बाहर आए, ठीक है। मेरे को मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस वापस मिला इन टर्म्स ऑफ दैट कि मुझे इंडिविजुअली मुझे ये बहुत और फैमिली अगर फैमिली वाइज देखो तो मेरा बहुत क्लोज मैंने अपना जो बॉन्ड बनाया है अपने दोनों बच्चों के साथ। आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं जॉब करती तो मैं ये कर पाती, मैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाउ आई नो नाउ जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था माय सन वाज द लिटिल वन वाज 3 years old, टुडे ही 7 नाउ। सो ये जो जर्नी जो मैंने अपने बड़े बेटे के टाइम पे जो मिस करी थी चीजें, तो उसके टाइम पे मैंने ये सारी चीजें आई एंजॉयड एंड इन द बॉन्ड आई हैव विद बोथ ऑफ माय किड्स, इट्स मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। तो दे लाइक इट्स तो आई एंड आल्सो माय बॉन्ड विद माय हस्बैंड, तो वो बहुत बहुत हम लोगों का और भी स्ट्रांग हो गया है। और एक चीज होता है जैसे कि बैक होम पहले क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद कुछ चीजें ऐसी थी जिसको जिसको देखने का नजरिया शायद आई डोंट थिंक सो मैं मतलब सही नहीं था या क्या था, तो वो नजरिया चेंज हुआ, ठीक है। कुछ मैं वैसे जैसे अपने पेरेंट्स की ही बात करूं बैक होम, तो मैं पहले बहुत छोटी-छोटी चीज़ों पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स या ये चीज़ें हो जाती थी, बट नाउ आई अंडरस्टैंड जब से मैंने चीज़ें समझी, क्योंकि इस बिज़नेस में आपका एक जो माइंडसेट बदलता है ना, वो भी आपको आगे बढ़ने में आपको बहुत हेल्प करता है। तो वो मेरा बहुत चेंज हुआ। फाइनेंशियली वी अचीव्ड अ लॉट इन दिस बिज़नेस बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स नॉट अ क्विक स्कीम, इट्स टेक्स इसको टाइम लगा, बट डेफिनेटली फाइनेंशियली भी हमने बहुत इस बिजनेस में मेरे को बहुत सक्सेस मिली है बिकॉज जैसे कि मैंने जब ये बिजनेस किया तो मेरा ये भी था कि मैं अपने हस्बैंड को एक ये पीस ऑफ माइंड दे दूं कि कभी भी उनको अगर डे ऑफ लेना हो जॉब से तो उनको सोचना ना पड़े, उनको ये ना हो हमारे मॉर्गेज के पेमेंट पे डिफरेंट वो आएगा कि घर का रेंट कैसे देंगे, तो वो हमें बहुत रिलीफ मिला। अभी जैसे लास्ट ईयर 2024 में तो हम लोग जैसे 1 मंथ के लिए हम लोग यूरोप ट्रिप पे गए थे, ठीक है। तो हस्बैंड की कोई पेड लीव नहीं है, तो विदाउट जब हम लोग घर पे भी आए तो उसके बावजूद भी लाइक घर में एटलीस्ट 5 फिगर अमाउंट जो इनकम था वो था, तो कुछ टेंशन नहीं थी हम लोगों को, हमने हॉलिडे स्पेंड करी। एंड नाउ हम लोग सोच सकते हैं जैसे कि अबाउट द इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर के लिए सिर्फ अपने लिए भी सोच सकते हैं कि हाँ हमने कुछ जैसे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में वो करा, घर में हमने अच्छा खासा डाउन पेमेंट, जैसे ये चीजें हम लोगों को फाइनेंशियली हम लोगों को इतना अच्छा गेन हुआ है डेफिनेटली। दिस बिजनेस ब्लेसिंग्स फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली। और वैसे भी शिखा आज के टाइम पे वैसे भी अगर दोनों मियाँ बीवी ना कमाएं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द एक्सपेंसेस, और एक यू हार्डली एंड अप मैनेज आप अपनी मॉर्गेज पेमेंट्स और रेगुलर खर्चे आप हार्डली आप अपने यू आर एबल टू फुलफिल दोज एक्सपेंसेस। और वेकेशन भी ऑफ कोर्स यू हैव टू
बहुत सोच समझ के you have to spend on your vacations, right? और you have to rely on your savings उस Yeah. चीज के लिए। तो और बहुत जरूरी है कि अगर दोनों कमा रहे हैं तो इट रियली गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड। इफ समथिंग हैपेंस, किसी की इनकम पे कोई इम्पैक्ट आता है, तो अनदर पार्टनर इज देयर टू सपोर्ट ईच अदर, राइट? तो ऐसे भी होता बहुत था। जरूरी है, हाँ, राइट? और स्पेशली इट्स अ बिजनेस विच ऑफर्स यू अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो जिसकी वजह से ऑफ कोर्स यू कैन मेंटेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल, you can invest, right? You can plan for vacations, you can help your family and friends back home. तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इट्स अ वेरी बिगेस्ट पीस ऑफ माइंड। और एंड सेकेंडली, क्योंकि और और दूसरा दूसरा, ना, मेरे हस्बैंड बहुत टाइम से सोचते थे कि ही वांट्स टू परस्यू लाइक करियर इन रियल एस्टेट, एंड ओके, लास्ट he did his real estate exam. He passed with the very good, and now he is a real estate agent. So like these are the things he because मुझे पता है कि अगर यही चीज अगर हम 4 साल पहले सोचते ना, तो सोच भी नहीं सकते थे। बिकॉज जब मैंने ब्रेक लिया था कि ठीक है मैं जॉब नहीं करती, तब बच्चे छोटे थे, तो हमें कोई अंदाजा भी नहीं था कि जैसे कोविड हिट कर गया, राइट? हमें और उसके बाद जो सारे एक्सपेंसेस बढ़े, ठीक है, हमें कोई ऐसा अंदाजा नहीं था। बट उस टाइम पे जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, दैट टाइम लगा कि पता नहीं सही किया होगा कि नहीं किया होगा, राइट? तो बट आज अगर हम वही चीज सोचते हैं कि तो हम हमेशा कहते हैं कि लाइक बहुत अच्छा किया। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब उसके हिसाब से कोई चीज होती है ना, तो वो हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट ही देती है। बिल्कुल बिल्कुल, यू ऑलवेज हैव टू मूव विद द फ्लो इन लाइफ, राइट? राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी वो कहते हैं ना, कभी कभी अपने पार्टनर को लगता है कि आई वांट टू टेक सम रिस्क, मैं कुछ नया वेंचर करना चाहती हूँ, तो वो तभी हो सकता है। आप यू कैन रिलाई ऑन योर पार्टनर कि भी ठीक है, मैं तभी रिस्क ले सकता हूँ इफ दैट पर्सन इज स्ट्रांग इनफ टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, ठीक है? अगर नहीं हो रहा तो बहुत डर लगता है वो रिस्क लेते हुए भी, राइट? और पता है मोस्टली केसेस में हस्बैंड्स जो होते हैं ना, वो रिस्क नहीं लेते बिकॉज दे नो कि उनकी इनकम पे पूरा घर चल रहा है। और मेरे साथ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा था। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करके दिया, राइट? बट जब उनकी खुद की बारी थी ना, तो वो ऑब्वियसली जब अगर आपने एक दूसरा करियर परस्यू करना है, तो आपको जो आप रेगुलर जॉब करो उससे थोड़ा बहुत ब्रेक लेना पड़ेगा, या कभी हाफ डे, कभी कुछ, right? तो मेरे हस्बैंड को कभी सोचा तक नहीं, क्योंकि उनको हमेशा यही लगता था कि ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, ही इज डूइंग फाइनेंशियली एवरीथिंग। तो उस टाइम पे उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो अगेन रिस्क मुझे मतलब मैंने लिया, बट मेरे को पता था कि मेरे सर पे बैठे हैं, अगर कुछ होता है तो ही विल हैंडल एवरीथिंग। कुछ नहीं था कि बट जब मैंने इसमें मुझे अच्छा खासा मुझे सक्सेस मिलने लगी, देन वी डिसाइड कि अब आप कर सकते हो जो चाहो, जो आपने सोचा था ना, आप भी अपने सपने पूरा करो। तो ये मेरे साथ इज ऑपोजिट, बिकॉज ऑफ कोर्स वी बोथ आर इक्वल कंट्रीब्यूटर टू आवर इनकम टुवर्ड्स आवर फैमिली। पर मुझे लगा कि भाई सिर्फ जॉब का तो काम नहीं है, माँ भी हूँ और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालनी है। तो अगर लेट्स इन केस कुछ मुश्किल आती है जॉब में, कुछ है हेल्थ इश्यूज, एनीथिंग कैन कम अप, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई डोंट हैव एनी बी प्लान इन प्लेस। और तभी शिखा, दैट्स द रीजन आई जॉइन दिस बिजनेस, बिकॉज इट ऑफर्स, आपको भी पता है, अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल turning their B plan into their main income. मैंने भी they quit their jobs. डेफिनेटली बहुत लोग अपने टीम में ऐसे हैं, दे स्टार्ट एज अ प्लान बी, पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज इसी बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं। फुल टाइम कर रहे हैं, एग्जैक्टली। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, डेफिनेटली। यस। तो शिखा, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो सबसे आपका बिगेस्ट लेसन क्या है इस जर्नी के लिए? मतलब you have been like 4 years, you have seen lot of ups and downs, and I've seen your confidence level also, the way you are conducting Zoom meetings, taking the team together, giving them confidence, guiding them. But आपको क्या लगता है, what will be the biggest lesson, what you will want to convey to our audience जो अभी भी सोच रहे हैं? I know a lot of people are looking for to earn extra income online these days, मगर
fear factor है, घबरा रहे हैं, they don't want to take that action. So what do you think कि आपका वो कहते हैं ना निचोड़ क्या है, मतलब 4 सालों का कि मैं मेरा निचोड़ ये है कि पहली बात, जिस चीज से आपको डर लगता है ना, वो चीज तो जरूर ही करनी चाहिए, बिल्कुल जरूर करनी चाहिए। एटलीस्ट अपने आप को एक ट्राई जरूर देना चाहिए। जब हम अपने बच्चों को कहते हैं कि एटलीस्ट यू शुड ट्राई, अगर वो किसी चीज से डरते हैं या कोई एग्जाम या कुछ, हमेशा ये कहते हैं कि इट्स ओके बेटा, इट्स टोटली फाइन, कम नंबर आएंगे तो चलेगा, इट्स टोटली फाइन, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। बिल्कुल व्हाई नॉट, ये चीज हमारे खुद के ऊपर क्यों नहीं होती है लागू? हम क्यों नहीं अपने आप को ट्राई दे सकते हैं? हम जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑन देयर स्पाउस, राइट? तो वो अपने आप को एक मौका क्यों नहीं दे सकते? जब भी कभी ऐसी बात आती है ना, ओ नहीं यार मैं कैसे करूं, बट व्हाई नॉट? अगर आप इस लाइफ में रहकर अगर अपने आप को भी एक मौका नहीं दोगे, तो आप अपने बच्चों के लिए क्या लेसन, आप उनको क्या दे रहे हो? तो मेरा लगता है कि डेफिनेटली यू शुड ट्राई। हो सकता है कि आपके वो ट्राई में आपकी खुद की लाइफ, अपनी आपकी फैमिली की लाइफ बदल जाए। एक तो मेरा ये। दूसरी चीज, कभी भी कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस, नॉट ओनली दिस बिजनेस, जब भी आप कोई बिजनेस या जॉब आप करें ना, हमेशा हम स्पेशली बिजनेस में हमेशा आप ये देखो अपने से पहले कि सामने वाला आपको ज्वाइन कर रहा है या आपके साथ बिजनेस कर रहा है, तो उसका फायदा है या नहीं है। अगर आप सिर्फ ये देखते हैं, हम लोग आज भी, और व्हाई दिस कम्युनिटी इज सो बिग, बिकॉज इस कम्युनिटी का जो मेन क्या कह सकते हैं, मेन पर्पस है इस बिजनेस का, लोगों को यही है हमारा कि हम अपने साथ, जैसे हमारी लाइफ बदली है, हम हमारे जैसे पेरेंट्स की भी लाइफ को बदल सके, ठीक है, उनको वो बता सके कि इस यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों लोगों की लाइफ चेंज करी है, आपकी भी कर सकती है अगर आप एक ट्राई करें तो दैट्स थिंग्स आई लर्नड इन दिस बिजनेस। एंड इस बिजनेस ने जो मुझे जो पॉजिटिविटी, जो मेरे सोचने का तरीका, जैसे मैंने पहले बताया ना कि टोटली चेंज हुआ, मेरे को पता चला कि लाइफ में एक अच्छाई करने की भी ना, आपको जब आप सामने वाले की अच्छाई कर रहे हो ना, सामने वाले के लिए अच्छाई कर रहे हो, उनके लिए ऑनेस्टली आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हो, तो ऊपर वाला आपको डेफिनेटली आपके लिए उसके दोनों हाथ खड़े हैं, आपका तो भला होना ही होना है। तो मैंने ये बहुत लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यू फॉलोड इन दिस बिजनेस? हमेशा उनको यही बोलते हैं, मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, जो आप लोगों को ट्रेनिंग मिली वही मुझे मिली, ठीक है, आपके पास कुछ था, मेरे पास भी वही था, बट द थिंग इज मैंने सिर्फ और सिर्फ साथ में ये बिल्कुल वो किया कि मैंने इस बिजनेस में आपको कंसिस्टेंट दिया, अपना हार्डवर्क इसमें पूरा डाला और ऑनेस्टली इस बिजनेस को कराया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप आओ और उसके बाद everything is you have to do it by yourself, नहीं। तो these are the things I learned from this business। और मैं यही बोलूंगी कि डेफिनेटली कोई भी चीज है, आपको जिस चीज से डर लग रहा है, बट आपकी खुद की सक्सेस इंट्यूशन कह रही है कि यू शुड एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए उस चीज को हमें। बिल्कुल। आप खुद देखिए ना, जैसे शिखा, लोग जॉब में होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको प्रमोशन चाहिए होता है, ऑफ कोर्स दे टेक अप द अनदर जॉब, राइट, नई पोजीशन पे जाते हैं, तो वो भी तो नया काम है, राइट, न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ओवर देयर इज नो फियर बिकॉज ऑफ कोर्स बिकॉज दैट्स अ जॉब, राइट, दैट्स नॉट अ बिजनेस, राइट, बट पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं है, राइट, people still try those things, but when it's coming to start their own thing, people get scared। और जब हम लोग एज एन इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए थे, बिगेस्ट रिस्क वी टुक इन आवर लाइफ, हमें कुछ नहीं पता था कि वी स्टिल स्टेप आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन, कि हम एक देश से लेकर दूसरे देश में आए जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता। वी वेंट थ्रू द कल्चरल शॉक, वेदर शॉक, everything we have to start from the scratch, right? के साथ आते हैं, जैसे कई लोग जैसे एज सिंगल है, बट कई लोग विद द किड्स, स्पाउस, सबके पूरी फैमिली के साथ, तो वो भी तो हम रिस्क लेते ही है ना। Exactly, and we learned everything from the scratch। हर छोटी चीज से लेकर ड्राइविंग सीखनी,
how to even तो snow में भी कैसे चलना. Small things, right? We have learned, right? So I think it's all about fear factor mindset. एक step लेने की देरी है, और जैसे जैसे आप लेना शुरू कर देते हो, and slowly you हाँ, become मैं यही confident, कह right? रही हूँ, क्योंकि देखो आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे स्कैम्स हैं, मैं मानती हूँ, ठीक है, बट हर चीज स्कैम नहीं है. आप मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? आप एक Yeah, पहलू को देखकर नहीं बढ़ सकते, आपको दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा ना, कि बिल्कुल डेफिनेटली अगर स्कैम है तो रियल भी है, ठीक है. बिल्कुल अगर वही डरते रहेंगे, आप डर रहे हो, बट आप अपनी रिसर्च तो कर ही सकते हो ना. उस बिल्कुल. रिसर्च में बदलो ना, रिसर्च बिल्कुल, में yeah. बदलो, देखो, यूज की अपना हम लोग माइंड है, लाइक यूज करो कि एक खुद को सेंस हो जाती है कि दिस इज रियल है नहीं है. आप और स्पेशली अगर हम इस बिजनेस की ही मैं अगर बात करूं, ठीक है, you can check us like everywhere. We are on like all the social media platforms. You can check us on Google, Instagram, Yeah. Facebook, everywhere you can check it. So this is the proof that this business is real and we are the real people. Yeah. Absolutely. So again, I know लोग बदलेंगे, चाहे धीरे धीरे पर बदलेंगे जरूर, for sure. Okay, great. तो शिखा, any final recommendations? कुछ आपको लगता है, any message, final message यही before we wrap up? डेफिनेटली ट्राई करो, ठीक है. अगर अगर आप हम लोगों की बात भी करो, अगर हम लोगों ने भी ट्राई नहीं किया होता तो 4 साल पहले जो सिचुएशन थी वहीं की वहीं रहती, वो चेंज नहीं होती. खर्चे बढ़ रहे थे, ठीक है, बच्चों ने बड़ा होना है, अपने अपने उनके स्कूल्स, यूनिवर्सिटी सब है, वो कभी कम नहीं होंगे, ठीक है. आप हमारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी, बट खर्चे कम नहीं होते. तो डेफिनेटली एक ऐसी पैसिव इनकम हमारे पास आज के टाइम पे जरूर होनी चाहिए, जो आगे जाके आपका और आपके फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर सकती है. और जो पैसिव इनकम है वो कभी जॉब से नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी. इट कम्स फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम योर ओन बिजनेस. और इससे बेटर हो भी कह सकता है कि आपको कोई ऐसा बिजनेस है, प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको सब कुछ थाली में सजा के मिल रहा है, ठीक है. अब वो खाने के लिए तो मुंह तो खोलना ही पड़ेगा ना, तो जिसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. हमें पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा, जिसके लिए यू हैव टू वॉच यू हैव टू रजिस्टर ऑन द वेबसाइट, एंड देन यू हैव टू वॉच द वेबिनार. यू कैन कम एंड चेक अवर प्राइवेट बिजनेस ग्रुप, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जैसे कितने लोग इस बिजनेस को डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट पार्ट द वर्ल्ड ये बिजनेस कर रहे हैं. आपके अपने आधे डाउट तो आपके वहां से ही क्लियर हो जाते हैं. बिल्कुल. Rightly said, Shikha. Or exactly so, I would say this is an amazing platform, और जिसमें you will get a complete package, great flexibility, work from anywhere, wherever you want, unlimited income potential. You can spend great time with your family if you're doing on the full-time basis. Of course, you can also do it on the part-time basis along with your full-time job. Very easy to manage. You can control your hours. There is no targets. You don't have to report to anyone. That's the beauty of this business, right? It's a legit, taxable. And of course, the best part is you can build a lot of relationship with the community members. You can talk. There's a lot of great support from your mentor and coach. So I think if you guys have any questions, any doubts, जैसे शिखा जी ने भी बताया कि अगर रिसर्च करने के कोई पैसे नहीं है, just go ahead and do the research, explore this business, ask a lot of questions. अगर आपको कोई भी doubts हैं, just come and talk to us, any one of us, and from there also you can able to decide this is something meant for you or not, right? So and take off your fears, step out of your comfort zone. Life एक है, that's it. So make sure you do your best, and that's it. So yeah, that's all about us. And thank you who has watched us and who are watching, and stay blessed and have a great night. Thank you so much. Thanks, Shika. Thank you. Bye-bye. Bye.